you, Samved, for giving a very lucid introduction of yoga. Friends, let me just tell you that these are the team leaders. We are also providing them a platform that they can also speak, they can also nurture, because they are behind the whole week. So they will also try to nurture their skills, and many of them are also speaking for the very first time. So we appreciate, Samved, your efforts to introduce the yoga session. Now I request Mauli Shah, again the team leader, to introduce our very learned speaker and yoga trainer, Shri Neeraj Vasisht. Yes, Mauli. Thank you so much, Fanal sir, for giving us the opportunity to speak for ourselves here. Good morning, fitness freaks. This is Mauli Shah, one of the colleagues of our highly efficient team leaders. We have all gathered here today to take our fitness goals to next level, which is why we have with us Shri Neeraj Vasisht, a learned yoga guru who has also remained a journalist with leading newspapers and the co-founder of Vasisht Yoga Foundation. I welcome you, sir, on behalf of the Ahmedabad branch of Vikasa. Thank you so much for joining us here. Shri Neeraj Vasisht envisions to make each life a celebration by means of a spiritual organization, Vasisht Yoga Foundation. He is also a firm believer of teaching based on developing mindfulness in practice and into daily life. Yoga is the science of union with self. The teaching of Vasisht Yoga has ancient roots. It does not only apply to asana, but also uses powerful visualization techniques like pranayam, mantra, and bhavana meditation as healing tools of yoga. Vasisht Yoga aims to apply the ancient yogic art with a contemporary scientific approach. Our yoga guru has also done a commendable job by sharing his valuable knowledge at various different places by conducting yoga workshops at Tihar Jail and ISRO, and corporate yoga workshops at workplaces like FinCare, among many more. This is just a compact introduction of this great personality we have with us here today. I hope this wonderful work keeps on enlightening us. We look forward to the insightful yoga session guided by Shri Neeraj Vasisht. Thank you, sir, for joining us here today. Thank you, everyone. Thank you, Molly. So now over to Neeraj sir. And Neeraj sir, it's a privilege and pleasure that we are having you with us today to guide us on this particular journey of yoga session. Thank you, sir. Thank you. Namaste. अभी को एक बार नमस्कार। अभी हम लोग 5 ओंकार करते हैं, फिर मेरे पीछे प्रार्थना, उसके बाद हम अपना सेशन स्टार्ट करेंगे। एक साथ सभी 5 टाइम ओंकार करेंगे। इसमें सीधे बैठ जाएं क्रॉस लेग में, किसी तरह से वज्रासन में, आंखें बंद, स्पाइन सीधी। टेक अ डीप ब्रीथ फॉर 5 टाइम ओंकार टुगेदर। टाइम शांति 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 शांति। ओपन योर आईज। ठीक है, तो हम इसके पहले अपना सेशन स्टार्ट करें, 1-2 बातों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है कि आप पूरे समय ब्रीदिंग का ख्याल रखेंगे। मैं कुछ भी कराऊं, ब्रीद हमारी शक्ति है और हमारी ब्रीदिंग हमारी मन को और हमारे शरीर को बैलेंस रखती है। बताया उन्होंने अभी कि शरीर मन के लिए जरूरी है। तो योग
कोई फिजिकल प्रैक्टिस नहीं है कि हम सिर्फ अपने शरीर पर ध्यान देते हैं, इससे भी ज्यादा जरूरी है हमारे मन पर। एक दो उदाहरण से आपको बात समझ में आ जाएगी कि मन कितना जरूरी है और इसको ट्रेन करना कितना जरूरी है किसी भी परिस्थितियों में। जैसी परिस्थितियां अभी देश में बन गई है, दुनिया में बन गई है, सॉरी, तो हम कैसे ट्रेन करें अपने आप को, हम स्टेबल रह सकें, हेल्दी रह सकें। दुनिया में आपके हेल्थ से बड़ा कुछ नहीं है। आप हेल्दी हैं, आपका परिवार हेल्दी है, आपका समाज, आपका राज्य, फिर हमारा देश, हमारी दुनिया। तो हमसे स्टार्ट होती सारी जर्नी, सारी यात्रा। और अगर हम खुद से अछूते रह गए तो कोई बात आगे नहीं बढ़ेगी। चलते थोड़ा पीछे, महाभारत के युद्ध शुरू होने वाला है। अर्जुन ने बोला, हे केशव, हे कृष्ण, मुझे एक बार देखने दो कौन कौन लोग मेरे खिलाफ लड़ रहे हैं। और जैसा आप जानते हैं, उन्होंने देखा, फिर उनके मन में एक मोह आया, एक मन में भाव आया ग्लानि का कि मेरे द्वारा सारे लोग मारे जाएंगे। एक मन में तरंग पैदा होगी, शरीर में कंपन होने लगा और वो शिथिलगात होकर गिर जाते हैं। आपने पढ़ा होगा, आपने देखा होगा बी.आर. चोपड़ा के महाभारत में। तो बात क्या हुई कि कृष्ण को समझ में आ गई, इसका मन कमजोर है, इसकी ब्रीथिंग इम्बैलेंस हो गई है, ये कांप रहा है, ये डर रहा है। तो उसको कृष्ण किसी वैद्य के पास नहीं ले जाते, ये कोई हॉस्पिटल की बात नहीं कर रहे हैं। कारण क्या है, जान रहे हैं कि मन की चिकित्सा होगी, ये तुरंत ठीक हो जाएगा। और जैसा आप जानते हैं, उन्होंने उनका ट्रीटमेंट किया साइकोलॉजिकली और वो खड़े हो जाते हैं, युद्ध लड़ते हैं। तो सब स्थितियों में आपका मन जैसे चलता है, आपकी ब्रीदिंग की गति वैसे होती है, या कहें जैसे जैसे आपकी ब्रीदिंग होती है, मन वैसे चलता है। चले वाते चले चित्तम निश्चलम निश्चला भवेत्। जैसी ब्रीदिंग होती होगी, मन वैसा होगा। ये दो उदाहरण से मैं बात खत्म करूंगा। इसको बोलते हैं बुद्ध परंपरा में तानसेन, और हमारे यहाँ बोलते हैं वशिष्ठ प्राणायाम या एब्डोमिनल ब्रीदिंग, डायफ्रामिक ब्रीदिंग। जब आप बहुत कूल होते हैं या किसी बच्चे को देखे होंगे, उसका बिल्कुल एकदम रिदम से एब्डोमिनल ब्रीदिंग होता है, वेरी नेचुरल ब्रीदिंग। बाद में हम लोग ये ब्रीदिंग भूल जाते हैं। तो आप कभी भी लगे आपको कि मेरे को मन अच्छा नहीं लग रहा है, मन में कोई तनाव है, या बॉडी अच्छा नहीं लग रहा है, बॉडी में कहीं तनाव है, आप डीप ब्रीदिंग करें। कोई जरूरी नहीं कि आप किस प्रकार की मुद्राएं लगाते हैं, वो ठीक है, वो अच्छी बात है, आप मुद्राएं लगाते हैं, लेकिन आप ब्रीदिंग करें, आपकी स्थिति ठीक हो जाएगी। तो बात हम ब्रीदिंग से स्टार्ट इसलिए कर रहे हैं, हम कुछ भी अभी मैट पर करेंगे 1 आवर 50 मिनट, तो ब्रीदिंग मुझसे मिस ना हो। और कुछ हम ज्यादा कराने वाले आपको नहीं है, तो कोई भारी भरकम। योग का मतलब है ही कि आप जुड़ जाएं। कैसे जुड़ते हैं, क्या विधि है, वो अनदर मैटर है। तो थोड़ा स्टार्ट करते हैं। सभी मैट पर इस तरह आ जाए जैसे मैं हूं, दोनों घुटनों के बीच डिस्टेंस अपार्ट, एक एक अलाइनमेंट का ख्याल रखेंगे। दोनों हाथों के बीच शोल्डर डिस्टेंस अपार्ट, wrist to shoulder in one line, knee to hips in one line. When I say inhale, lower back drop, head up. Exhale में chest से पुश करते हुए shoulder ऊपर, chin नीचे. Now start. Inhale, exhale, inhale, exhale. ब्रीदिंग का ख्याल रखेंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल। यहां स्टे करें, 1 2 3। एक्सेल, यहां भी स्टे की ब्रीदिंग, 1
2 3। ठीक है, यहाँ से लेफ्ट लेग उठाए पीछे, तो इंस्ट्रक्शन पर ध्यान देते चलते हैं। नाउ राइट हैंड, फिंगर आगे इंगेज, टोज पीछे इंगेज, कीप ब्रीदिंग। 1 2, facial muscle relax, 3 4 5। चेंज, पहले पाँव उठाए राइट, नाउ लेफ्ट हैंड। 1, आपका ध्यान आपके ब्रीदिंग पर। 2, एक बार पोज देख लिए, ब्रीदिंग पर ध्यान। 3 4 5। यहां से नी पर खड़े ही रहेंगे, सिर्फ हाथों को आगे बढ़ाते हुए और हेड को नीचे लगाएं। अपने मन को रिलैक्स शांत फील करें और पेट अंदर करने की कोशिश करें। 1 2 3 4 5। पीछे बैठेंगे शशांक आसन में। पे क्या करना है, हिप्स को रख दें, एटलीस्ट नी को थोड़ा वाइड कर दें वी शेप में, और आगे इस तरह लेट जाए। स्पाइन को जितना लंबा रखना, हिप्स को पीछे ही रखें, फोरहेड या चिन लगा दें। 1, कोई जबरदस्ती ना करें, ओवर स्ट्रेच ना करें। 2 3 4 5। ओके, यहाँ से वापस कैट कॉ वाली स्थिति में आएंगे। थोड़ा हथेली मैंने कैट कॉ में यहाँ था, अब यहाँ रखा, इस तरह धीरे धीरे अपोजिट हुई डॉग पोज। नी को बैक में बहुत पेन रहता है, वो थोड़ा सा नी को बैक रखेगा भी इस तरह। जिनका कंफर्ट है वो नी कैप खोले, इसको ऊपर लिफ्ट कराएंगे, शोल्डर बैक होगा, पॉ इंगेज, गेज बैक। देखिए पीछे की ओर। 1 2, अपने पोज को ऑब्जर्व करें, ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करें। 3 4 5। यहां से एक बार देख लें कि आप करेंगे। आप देखने के लिए आप इस तरह रुक सकते हैं। राइट को इस तरह बेंड करें कि राइट नी आपके राइट हथेली के पास आ जाए, और हिप्स को धीरे धीरे रखने की कोशिश करें। इधर लेफ्ट थाई को ग्राउंडेड करते हुए स्पाइन लंबा करें। ये मैं क्यों कर रहा हूं आपको बताऊंगा आगे। अभी यहां रुके। 1 2 3 4 5। यहां से हाथ फिंगर के सपोर्ट से जितना बैक बेंडिंग, ये अगर नीचे रह सके कोई ठीक है, अदरवाइज आप फर्स्ट बार कर रहे हैं कोई बात नहीं। यहां से चेस्ट ओपन करें, चेस्ट ब्रीदिंग करें। 1 2 3, कोई ओवर स्ट्रेच नहीं। 4, लिसन योर बॉडी। 5, अगेन डॉग पोज। यहां से हम लोग हर बार डॉग में स्ट्रेच कराएं पूरी बॉडी। नाउ लेफ्ट लेग इस टाइम, इस बार लेफ्ट हिप्स और राइट थाई ग्राउंडेड, पूरा पांव पीछे, इतना स्पाइन लंबा। 1 2 3 4 5। यहां से पीछे। 1 2 3 4 5। वापस डॉग। यहां से चले पीछे, हाथों के सहारे रहें। जिनको बैक में दिक्कत है उन्हीं को बैक करें,
तो कंफर्ट है वो इंगेज करें, स्टे 1 2 3 4 5 इनहेल। तो अभी एक सेट आप सूर्य नमस्कार देख लें मेरे साथ, फिर हम पीछे करेंगे। कोई अलाइनमेंट में गलती ना हो, वरना हम ज्यादा कर तो लेते हैं, पा नहीं पाते हैं। दूसरी बात, अगर आप योग में ब्रीदिंग को मिक्स करते हैं तो फिर ये फिजिकल प्रैक्टिस रह जाती है, कसरत भी बोल सकते हैं इसको। तो देख लें एक राउंड। समय स्थिति में क्या करना है, आपका टोल हील मैच करें, कैप को ऊपर इंगेज, बटक को लॉक करेंगे इनसाइड, थोड़ा बेली को लॉक अंदर करेंगे, चेस्ट को इस तरह ओपन, शोल्डर बैक। ये हमेशा इस तरह खड़े रहें। ऐसे भी जनरल राइट पे खड़े रहे, दोनों पैर पर खड़े रहे, एक पांव पर खड़े मत रहे। ये दिक्कत करता है पांव को, नी को, हिप्स को, पैल्विक रीजन को कमजोर करता है। तो हमेशा दोनों पैर पर खड़े रहे। दोनों पैर भगवान ने दिया है, एक थोड़ी दिया है। तो एक बार देख लें। लंबी गहरी ब्रीथ, 1 नमस्ते, एक्सेल 2 इनहेल, कंफर्ट हो 3 में एल बनाएंगे। ये तुरंत इस तरह नहीं बैंड करेंगे, हम यहां से आगे ले जाएंगे स्पाइन को, लेंथनिंग योर स्पाइन फर्स्ट, देन बैंड। 4 इनहेल राइट, हाई प्लैंक, इस तरह उठे, शोल्डर को बिना चेंज किए। 6 पूरी बॉडी रख देंगे आप, एल्बो इनसाइड। 7 सिर्फ बैक से उठेंगे, हाथों का उपयोग इस तरह नहीं करेंगे। 8 डॉग, 9 राइट। ये 90 डिग्री बनेगा, हमेशा ख्याल। 10 मैच, इनहेल 11 12। तो ठीक है, मेरे साथ करें, किसी को दिक्कत हो आप देखते रहें। समय स्थिति रेडी। एक बार मैं व्यू कर देता हूं ताकि मैं सबको भी देख पाऊं, थोड़ा भी कम से कम। हाँ अब ठीक है, मुझे दिखने लगा। ठीक है रेडी। समय स्थिति, सभी खड़े हो जाए इस तरह। अपना ध्यान अपने ब्रीदिंग पर, आपके पोज से भी इंपॉर्टेंट आपकी ब्रीदिंग है। लंबी गहरी ब्रीथ, 1 एक्सेल, 2 इनहेल, हैंड्स अप एकदम स्लोली। 3 बेंड फॉरवर्ड, एक्सेल। 4 इनहेल, राइट बैक, पीछे नी ड्रॉप, दृष्टि सामने। हाई प्लैंक, ब्रीथ होल्ड। 6 एक्सेल ड्रॉप, एल्बो इनसाइड। 7 इनहेल, भुजंग। 8 एक्सेल डॉग। 9 राइट लेग स्टेप फॉरवर्ड, इनहेल। ठीक करें, जिनका ठीक नहीं मैं दिख रहा हूं, नीज एंकल टू नी 90 डिग्री। हाँ ठीक है। 10 मैच, एक्सेल। 11 इनहेल। 3 कंटिन्यू, एक्सेल। 4 इनहेल, लेफ्ट लेग, एक बार राइट एक बार लेफ्ट, नीचे करें जिनको दिक्कत नहीं होनी है। 5 प्लैंक, ब्रीथ होल्ड। 6 एक्सेल। 7 इनहेल, भुजंग। 8 एक्सेल डॉग। 9 लेफ्ट इनहेल। 90 बनाए, जिस तरह यहां आ रहा है पैर, इस तरह उठा के आगे ले जाए। हाँ 10 मैच, एक्सेल। 11 इनहेल।
3 bend forward exhale, 4 inhale right back, ठीक करें 90 डिग्री, 5 plank breathe hold, shoulder to wrist in one line, 6 exhale, 7 inhale bhujang, 8 exhale dog, 9 right inhale step forward, 10 max exhale, जिनको दिक्कत है वो रुकेंगे, 11 inhale, 3 exhale, 4 inhale left leg, 5 plank breathe hold, 6 exhale, 7 inhale bhujang, 8 exhale dog, 9 left inhale step forward, 10 exhale max, inhale 11, 12. नमस्ते। तो समय के साथ हम चलेंगे जितना समय मिला है। ये सूर्य नमस्कार हठयोग है। हम लोग डेली प्रैक्टिस में 3 तरह के सूर्य नमस्कार और बाद में 4 तरह के सूर्य नमस्कार करते हैं। जो हमारे साथ करते हैं एडीआर में जयमीन पंचाल जी। तो सूर्य नमस्कार अष्टांग विन्यास ए, सूर्य नमस्कार अष्टांग विन्यास बी, फिर हम लोग इसमें विन्यास फ्लो करते हैं, एक साथ स्टैंडिंग आसन को जोड़ते हैं। लेकिन हमारे पास जितना समय है उसके हिसाब से एटलीस्ट सूर्य नमस्कार इतना ही काफी है। क्या जयमीन जी इतना काफी है ना? हाँ तो अभी हम स्टैंडिंग, तो स्टैंडिंग में ऐसा क्या करें जो अभी हमारी जरूरत है। अभी हमारी जरूरत क्या है? इम्यूनिटी। हम कैसे अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं। आखिर हम अभी पूरी दुनिया किस पर चर्चा कर रही है? सबसे ज्यादा रिसर्च किस पर है आज के डेट में, पिछले मार्च से लेकर अभी तक, कि कैसे अपनी इम्यून बूस्ट करें। तो 1-2 चीजों को सिंपली आप समझ लें, इम्यूनिटी कैसे काम करता है, योगा कैसे वर्क करता है इम्यून बूस्ट में। और पहली बात बता दूं आपको, कोई सिंपैथेटिक नहीं है। इम्यूनिटी 1-2 दिन में बूस्ट नहीं हो जाएगी। इसके लिए आपको लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अपना लाइफ स्टाइल थोड़ा बहुत चेंज, थोड़ा खान पान भी। तो हमारा शरीर अपने आप में तैयार है हमको देने के लिए। हम मिस अलाइनमेंट करके गड़बड़ करते हैं। आप अलाइनमेंट रहे, बाकी तैयार है। समझ ले चीजों को। यहाँ पर थाइमस ग्लैंड होता है। जैसे हम चेस्ट की ओपनिंग कराते हैं, थाइमस ग्लैंड टी सेल के साथ एक्टिव होता है और वो जनरेट करता है। जनरली उसका एरिया ये हाथ पूरा, ये पूरा फेस रीजन, ये सब होता है। दूसरा हमारा जो पैल्विक रीजन है यहाँ। तो अब तीसरा फंडा है उसका स्प्लीन का। स्प्लीन ठीक यहाँ पर आता है, ठीक नीचे। तो समझे इसको ऐसे कि आपने चेस्ट ओपनिंग की, जैसे अभी हमने भुजंग आसन किया, राज कपूर पे बैक बेंडिंग किया, तो चेस्ट तो ओपनिंग हो गई और हैंड को स्ट्रेच कराया तो फैला। लेकिन दिक्कत होती है कहाँ कि हमारा पैल्विक रीजन ओपनिंग नहीं होता है। कारण क्या है? हम दिन भर बैठते हैं, बैठने का जॉब करते हैं, तो हमारा हिप्स जितना स्टिफ होगा इसमें कम ओपनिंग होगी। दूसरा कि इसको स्ट्रेच कराना पड़ता है। जैसे आपका ऑक्सीजन का फ्लो है, आपके ब्लड का जो फ्लो है, वो आपका हार्ट पंपिंग से काम करता है। यहाँ कोई पंपिंग सिस्टम नहीं है। लिम्फ नोड्स के लिए आपको स्ट्रेचिंग करानी होगी। जैसे कि वीरभद्रासन 1 या अंजलिया में ये कर रहे थे, तो पूरा ये पार्ट मेरा स्ट्रेच हो रहा था और चेस्ट ओपनिंग है और हैंड भी स्ट्रेच, यानी पूरा थाइमस ग्लैंड एक्टिव हुआ, टी सेल पहुंच रहा है और लिम्फ नोड भी फैल रहा है। और जब हम आगे की ओर बैंड करते हैं तो हमारा स्प्लीन सेक्रेशन करता है, तो वो एक्टिव होता है, स्टिमुलेट होता है। तब हमारी इम्यूनिटी डे बाय डे बढ़ती है, जिसको पतंजलि ने कहा है सतु दीर्घ काले नैरंतर्यम
सत्कारा सेवितो दिन भूमि, आप रोज कीजिए, प्रतिदिन कीजिए, श्रद्धा के साथ कीजिए, तब आप दृढ़ भूमि का आप वो प्राप्त कर सकते हैं। तो ठीक है, आगे बातचीत ना करते हुए त्रिकोण आसन में आएंगे। एक बार देख लें, दोनों पांव के बीच 2.5 से 3 फीट का गैप हो। एक एक चीज को ख्याल रखेंगे, दोनों हील एक लाइन में हो, इसलिए आप मैट के चले जाए लास्ट में या मैट के आगे आ जाए, जैसे भी आप कंफर्ट लगे। टर्न राइट फुट राइट साइड, हैंड ओपन। देख ले, पहले एक बार देख लीजिए। इनहेल, आप देख रहे हैं मैंने चेस्ट की ओपनिंग किया है, हम इस तरह नहीं करेंगे, जो गलती होती है। चेस्ट ही कोलैप्स हो गया तो कहां से भैया थाइमस ग्लैंड एक्टिव होगा। हम कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन पहुंच नहीं रहे हैं। तो सही प्रैक्टिस से सही रिजल्ट आएगी। यहाँ पर हम कम झुकेंगे, हम यहीं पर हैं, लेकिन चेस्ट खोलेंगे और चेस्ट ब्रीदिंग करेंगे। सेकेंड वेरिएशन में हैंड ड्रॉप करके झुकेंगे, फिर इसी को लेफ्ट साइड रिपीट करें। सभी लोग खड़े हो जाए। नाउ योर टर्न। टर्न राइट फुट राइट साइड, हैंड ओपन, पैरेलल टू द फ्लोर। एक लंबी सांस, ब्रीथ, इनहेल, धीरे धीरे एक्सेल, ड्रॉप, चेस्ट ओपन। मैंने यहाँ फिंगर, दृष्टि आपका लेफ्ट हैंड फिंगर, जिनको सर्वाइकल में का इशू है वो सामने देखें। 1 2 3 4 5, हैंड ड्रॉप। 1 2 3 4 5, change. Breathe, inhale, exhale, left side. Gaze right hand finger, chest open, chest breathing. 1, आप ब्रीदिंग कीजिए, मैं काउंट करता हूँ। 2 3, पूरा पाँव दोनों एंगेज। 4 5, चेस्ट ओपन हो, सामने की ओर, ऊपर देखें छत की ओर। 1 2 3 4 5, ओके। अभी हम लोग जैसे बताए अभी हम जस्ट कि पेल्विक का कितना स्ट्रेच हो और चेस्ट ओपनिंग साथ साथ, पाँव ज्यादा खोले, हाथ में करते हैं हम लोग। राइट फुट टर्न करें राइट साइड, नी को बाइंड करते हुए राइट हैंड का एल्बो नी के ऊपर रखते हैं, लेफ्ट हैंड को ऊपर। अब ये पाँव जितना ओपनिंग हो, यहाँ 90 बने। 1 2 3 4 5, ओके। सेम रिपीट। आप देखिए यहाँ स्ट्रेच करा, इससे इस पैर को ज्यादा टर्न करें, इस नी को सीधा रखें, इसको इनसाइड ना आने दें। 1 2 3 4 5, ओके। पीछे थोड़ा पाँव खोले। अब हमने आगे बात की कैसे हम स्प्लीन को एक्टिव करते हैं। पाँव ओपन करें, कमर पर हाथ रखें, अब धीरे धीरे आगे बैंड करना है। पेट को अंदर खींचे, हेड ड्रॉप करें, स्पाइन को हैंगिंग कर दें, नी कैप इंगेज, हेड ड्रॉप, स्टे हियर 5 ब्रीथ। 1 2 3 4 5। यहां से अपने हथेली से एल्बो को पकड़े, नीचे पुश करें, शोल्डर पर वेट पड़ेगा, आपकी बेली इनसाइड होगी। 1
2 3 4 5। वापस आ जाए बेंच। तो आप देख रहे हैं कि कैसे जैसे हम झुकते हैं हमारा बेली ऑटोमेटिक इन होता है, या इन नहीं हो रहा है, आप इनसाइड कर रहे हैं बेली को, स्पाइन लंबा होता है। तो आपकी स्ट्रेंथ आपकी स्पाइन है, इतना स्पाइन को हम सीधा रख सकते हैं। ठीक है, इस तरह राइट को आगे रखेंगे, लेफ्ट पीछे, एक साइड स्ट्रेच। आप चेक करें आगे का फुट 90 डिग्री, पीछे का 45 डिग्री, दोनों थाई, बेली, चेस्ट, शोल्डर सामने कैमरा की ओर। ब्रीथ, इनहेल, हैंड्स अप, लंबा करें स्पाइन, तब ड्रॉप। नी कैप इंगेज रहेगा, आगे का जो फुट है उसका वेट उसके हिप पर, टोज लाइट, हेड ड्रॉप। 1 2 3 4 5। इनहेल, एक्सेल। चेंज करते हैं, जो आगे था उसको पीछे कर दें। आप स्ट्रेच को फील करें, वहां ऑब्जर्व करें। जैसे आप देखने लगते हैं अपने अपने बॉडी को, आपकी बॉडी आपको सपोर्ट करती है। ब्रीथ, आप ऐसा करके देखिए, एक्सेल। 1 2 3 4 5। ओके, एक वृक्षासन करेंगे, इस पर पांव उठाए, नमस्ते। चेस्ट ओपन होगा, पांव इंगेज होगा, बेली इनसाइड, अपने बॉडी ऊपर की ओर इंगेज। 1 2, दीवार पकड़ सकते जिनको दिक्कत है, 3 4 5। हाथ ऊपर करें, पूरा पूरा ऊपर की ओर करें। बताया मैंने कैसे स्ट्रेच कराना इंपॉर्टेंट है। 1 2 3 4 5। चेंज कर दें। 1 2 3 4 5। up, 1 2 3 4 5। ओके, अब थोड़ा सा हम अपना ध्यान रखें कि हम जो काम कर रहे हैं उसके हिसाब से हम अपने बॉडी को तैयार कैसे करते हैं, क्योंकि हम सब बैठ के काम करते हैं सारे लोग ज्यादातर। तो कैसे हमारी स्पाइन का जो होता है वर्टिब्रा, नीचे लंबा स्पाइन, वो कैसे बैठता है, उसके बैठने का रीजन क्या है, आपकी हिप्स ओपनिंग नहीं है और आपका सर्वाइकल पर लोड है। क्यों? हम सिस्टम पर बैठ के ज्यादा फॉरवर्ड हो जाते हैं, चीन निकल जाता है आगे, शोल्डर आगे चला जाता है, तो धीरे धीरे वेट पड़ता है आपकी स्पाइन पर। आपके हाथों में पेन, बैक पेन, पाँव में पेन, साइटिका इशू, ये सब चालू होने लगता है। नमनेस, स्टिफनेस इन मॉर्निंग इन योर हैंड्स, लेग्स, स्टिफनेस इन योर बैक साइड, हिप्स, पेल्विक, ग्रोइंस। तो इन चीजों को कैसे एक इजी आसन दो करेंगे कि आप कभी भी कहीं भी कर सकें। देख रहे हैं आप, मैं दीवार के पास हूं यहाँ पर और हथेली दीवार में लगाया है। 1 मिनट, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप कभी भी करें। इस तरह से हिप्स को देखिए, मैं ऐसे हिप्स को पीछे ले जा रहा हूं, चिन्ह को नीचे, चेस्ट नीचे, हिप्स बैक, तो पांव भी इंगेज होगा, पूरी बॉडी भी इंगेज। जहां स्टे करेंगे सभी लोग यहाँ पर आ जाए और हथेली का वेट दीवार पर कम रखते हुए पीछे, हिप्स को ज्यादा धक्का देंगे। इसकी टेक्निक क्या है, आप जितना पेट अंदर करेंगे आपका लंबर स्पाइन, टेलबोन से यहां तक ओपनिंग ज्यादा होगी। 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, ये सर्वाइकल वालों के लिए भी सबसे बेस्ट है। अब देखिए क्या, एक हैंड के शोल्डर ओपनिंग के लिए इस तरह हम खड़े हो गए हैं और जितनी दूरी हथेली है वहां लगा दी। एक बार देख ले अच्छे से, गलती ना हो। तो रिस्ट से शोल्डर एक लाइन है, ये ना ऊपर है ना नीचे है, सीधा, दोनों पांव में गैप है। अब पांव को बिना उठाए, एक बिना पांव को देखें, फुट को, यानी एक एक चीज को देखें, हम कम करें लेकिन ढंग से समझें। यहां से बिना उठाए टर्न कर दिया, आप देख लिया। अब आप चेस्ट देखिए मेरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं फोकस कर रहा हूं आपके लिए। आप ऑफिस में कर सकते हैं, बस आप आइए और अनुभव लीजिए। फिर यहां से चेंज करें। आप देख रहे हैं आपके हथेली से लेकर शोल्डर तक एक स्ट्रेचिंग हो रही है। 1 2 3 4 5। ओके, एक और शोल्डर ओपनिंग जो हमारे लिए जरूरत है, हम अभी ऑफिस के हिसाब से और थोड़ी इम्यूनिटी के हिसाब से हम सारी कोशिश कर रहे हैं। एक टेबल इस तरह ले लिया हमने, नी पर खड़े हो गए, ये यहाँ पर लगाया एल्बो से, फिर नी को पीछे करते हुए हेड को ड्रॉप। जिनको सर्वाइकल है वो जरूर करें, जिनको स्पाइन का कोई दिक्कत है करें, अच्छा रहेगा। आपका हिप पीछे जाए, आ जाइए यहाँ सभी लोग। नाउ 10 ब्रीथ, इन को नीचे खींचे, हिप्स को पीछे धक्का दें। 1 2 3 4 5 6, watch your breath, 7 8 9 स्लोली, आराम से। आसन तो कई है, लेकिन टाइमिंग के हिसाब से मैं एक छोटा सा पैकेज लाया हूँ। छोटा टॉपअप है 20 रुपये, एकदम जस्ट रिचार्ज कराया, अब बातचीत स्टार्ट। लेकिन बातचीत स्टार्ट हो गई, आज आगे स्टार्टिंग है, तो फिर आगे चलेंगे तो देखेंगे। अब हम आ गए वापस वहीं पर कि पैल्विक और चेस्ट स्ट्रेच कैसे हो। फिर हम अपने अपने पॉइंट पर हैं, इम्यूनिटी वाला, और बैक थोड़ा स्ट्रेंथ कैसे हो। एक बार देख लें, 2 आसन करें, ज्यादा नहीं। इस तरह हम लेट गए, हथेली को अंदर ले गए, चिन्ह को नीचे लगाए, ब्रीदिंग करते हुए पैर को ऊपर उठाए, यहाँ स्टे करें। आ जाइए सभी लोग, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं ही करता रहूं। नाउ रेडी, इनहेल अप, 1 2 3 4 5, ड्रॉप। ये कार्डियो भी है एक तरह से। हाथ ओपन करें, शोल्डर लाइन में, पांव थोड़ा खोलें। देखेंगे आपकी हार्ट बीट भी थोड़ी तेज होगी यहाँ पर। इनहेल 1 2 3 4 5, यहाँ पर आ जाए, हवा में ही रहे। 1 2 3 4 5, रिलैक्स, watch your breath। एक सपोर्टेड भुजंग करेंगे हाथों के सपोर्ट से। नाउ रेडी, सांस ले, ऊपर उठे, छोड़ते हुए नीचे, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल,
inhale, exhale, last inhale, stay breathing 1 2 3 4 5 यहां से वापस डॉग में ऐसे नी बाइंड किया आप डॉग कराएं फिर बॉडी देखिए कितनी लाइट होगी 1 2 3 4 5 आसान का आसन जो हमने पहले किया 1 2 3 4 5 ठीक है इस तरह बैक लेग क्रॉस लेग एक हिप्स ओपनिंग करेंगे इस तरह देखिए राइट पैर मेरा नीचे एल बन गया लेफ्ट ऊपर यानी हील टू नी पॉइंट एक हील मेरा नी के ऊपर है एक हील मेरा नी के नीचे है ऐसा बने जितना ऊंचा है इस तरह ऐसे रहे कोई दिक्कत नहीं है तब आ जाए यहां पर आप देखेंगे आपका हिप एंड हिप फ्लेक्सस में कितनी स्ट्रेच होती है ब्रीथ इनहेल आगे बढ़े फोर आर्म्स को रखना नहीं हो यहां रहे बेटर है यहां रहे पेट अंदर खींचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 come back चेंज जस्ट अपोजिट कर जो नीचे था उसको ऊपर कर ब्रीथ इनहेल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह पीठ के बल लेट जाए हथेली को उल्टी यानी पाम से ग्राउंडेड करते हुए हिप्स के नीचे रखें देखिए मेरे पीछे आ जाओ अब दोनों पांव थोड़ा उठा थोड़ा सा 10 से 12 इंच टोच को बाहर कर इंगेज करें आंखें बंद अपना ध्यान नाभि पर नेवल एंड कीप ब्रीदिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ओके इस तरह पाँव को बाइंड करें आपके फिंगर से आपका हील टच हो जाए इतना दूर लाएंगे अपने हील को इनहेल ऊपर उठाएं फिंगर लॉक कर सके लॉक करें नहीं तो आप फिंगर छोड़ के खा लें ये बेस्ट आसन है इम्यूनिटी के लिए चेस्ट देखिए ओपन हो रहा है पेल्विक में स्ट्रेच है हैंड में स्ट्रेच है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ड्रॉप राइट को बैंड करें लेफ्ट नी के ऊपर रखें सुचिंद्रासन और दोनों हाथ अंदर करते हुए नी को पकड़ें सांस भरें छोड़ते हुए पुश करें हिप्स में स्ट्रेच होगा हिप फ्लेक्सर 1 2 3 4 5 जस्ट चेंज करें दूसरी ओर ब्रीथ इनहेल एक्सहेल 1 2 3 4 5 एक लास्ट आसन राइट फुट को लेफ्ट नी के ऊपर रखें दोनों हाथ शोल्डर लाइन में अब जो पाँव है राइट मेरा है लेफ्ट हैंड से पकड़े
लेफ्ट साइड पुश किए, दृष्टि राइट, 1 2 3 4 5। यहां से चेंज जस्ट, इस बार लेफ्ट फुट राइट नी के ऊपर, राइट हैंड से कैच, ब्रीथ इनहेल, ड्रॉप, 1 2 3 4 5। दोनों पाँव को बैंड करें, पानासन, 5 to 7 टाइम रोल करके बैठ जाए। जिनको स्पाइन में इश्यू है वो रोलिंग ना करें। तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट सेशन में हम लोग लास्ट है, समय को भी, योगा इज डिसिप्लिन। डिसिप्लिन है कि जो भी फिक्स हुआ है तो हमको उसके हिसाब से चलना पड़ता है। डिसिप्लिन यही है कि आप अपने को कितना जानते हैं, जैसा कि शुरू में बताया उन्होंने। और अपने को जानने की एकमात्र उपाय है आपकी ब्रीदिंग। आप बहुत तनाव में हैं, कुछ मत कीजिए, बहुत थाउट है, थाउट के बारे में मत सोचिए, आप ब्रीदिंग करने लगिए, बैठ कर लेट कर कैसे भी आप बेटर फील करेंगे। जैसे आप ब्रीदिंग से जुड़ते हैं आप बेटर। तो यहाँ जो हमने बात की आज इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए, उसमें एक टर्म कंडीशन ये भी है कि ठीक है आप चेस्ट ओपनिंग करते हैं, हैंड स्ट्रेच करते हैं, पेल्विक स्ट्रेच करते हैं, लेकिन आपको रिलैक्स होना जरूरी है। जैसे आप रिलैक्स होते हैं बॉडी ऑटोमेटिक काम करती है, तो कहने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑटो रिस्पॉन्स करती है। इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सूर्य नाड़ी यौगिक साइंस में, चंद्र नाड़ी। तो हम जो एक्टिव है बहुत, इट मीन्स हमारा सूर्य बहुत एक्टिव है। तो बैलेंस जरूरी है, जिसको भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है समत्वम योग उच्यते, कि जीवन में बैलेंस चाहिए। हर जगह बैलेंस चाहिए। काम कर रहे हैं फैमिली के साथ बैलेंस चाहिए, दोस्तों के साथ बैलेंस चाहिए। काम ही कर रहे हैं, फैमिली छूट गई, क्या मतलब, बैलेंस कहाँ गया? भगवान कृष्ण कहाँ फिर रह गए हमारे आराध्य, सिर्फ बातचीत के लिए रह गए। तो सूर्य एक्टिव है तो अपने बॉडी को रिलैक्स भी करा रहे हैं। रिस्पॉन्स मेरा मजबूत है। हम खर्च कर रहे हैं पैसे, इसको समझिए ऐसे, आप लोग सीए हैं तो पैसा आगमन भी कैसे हो, इनकमिंग भी सोर्स बना रहे हैं, खर्च करते जाएंगे तो खत्म हो जाएंगे। तो एनर्जी खर्च कर रहे हैं, एनर्जी तभी पैदा होगी जब आप रिलैक्स होंगे। इसलिए तो हम सोते हैं, सोने के बाद हम इतना रिलैक्स महसूस करते हैं। लेकिन आप यौगिक तरीके से सोए जहां नो थाउट रहे, बॉडी पूरी विश्राम में रहे, तब समझिए कितनी रिस्पॉन्स करेगी। वो तरह से बैटरी चार्ज कीजिए मोबाइल का, एक यूट्यूब ऑन करिए, चार्ज कीजिए, एक बार मोबाइल शट डाउन करके चार्ज कीजिए, आपको रिजल्ट मालूम है, कहने की जरूरत नहीं। तो चार्जिंग के लिए रिलैक्सेशन चाहिए। रिलैक्सेशन आती है ब्रीदिंग से। इसलिए हमारे सारे पुराने शास्त्र कहते हैं खुद से जुड़ो, और आपसे इंपॉर्टेंट आपके लिए कुछ भी नहीं है। आप स्वस्थ है तभी सभी स्वस्थ है। एक आप गड़बड़ है पूरी फैमिली डिस्टर्ब। तो सारे जहां की अमानत है ये जीवन तुम्हारा नहीं, जीवन मिटाना है दीवानापन, कोई प्यार जीवन से प्यारा नहीं। तो जीवन को कितना हम सम्मान दें, कितना लव करें, कितना प्यार करें, इसके लिए अपने आप को फिट रखें। आप कोई भी तरीका अपनाएं, वॉक करें, योग करें, आपको जो अच्छा लगता है। ये सबकी अपनी अपनी चॉइस है, आप कैसे ठीक रखते हैं, लेकिन जो तरीका सही है उसको उस तरीके को अपनाएं तो बेटर है। अभी हम थोड़ा सा प्राणायाम एक समय के हिसाब से, क्या पंचाल जी 5-7 मिनट है अभी, तो उसके बाद एक शवासन बहुत जरूरी है। कैसे हम अपने आप को किसी स्थिति में रिलैक्स करा सकते। चीजें हमेशा एक ही घटती है, घटनाएं एक ही है, लेकिन हर व्यक्ति पर अलग अलग असर है। कोविड-19 जो अभी चल रहा है एक ही है ना, लेकिन हर आदमी का अलग अलग चल रहा होगा। कोई तनाव में हो, कोई, हम लोग खुश भी है, हम सभी 350 लोग आनंदित महसूस कर रहे हैं। तो चीजें एक ही है, धूप एक ही है,
एक आदमी परेशान है, एक आदमी ने स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट, ये है भैया, ये है, हमको कोई टेंशन नहीं, तो आप देखिए आप अच्छा फील करेंगे। आप कैसे तैयार होते हैं तनाव के लिए? तनाव स्टार्ट, आपको कोई तनाव नहीं दे सकता और आपको कोई शांत नहीं कर सकता, ये आपकी जिम्मेदारी है, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, कोई उपाय नहीं है। किसी के सहारे हम छोड़ सकते हैं कि अरे यार इसने डिस्टर्ब कर दिया, तो हम कितना अपने आप को ट्रेन किए हुए हैं, हम डिस्टर्बेंस नहीं लेते हैं। तो ठीक है, एक अनुलोम विलोम करेंगे, मैं बिना होल्डिंग का कराऊंगा, क्योंकि कई जैसे आपकी बहुत हार्ट की इश्यू हो, अस्थमेटिक हो, ब्रीदिंग शुरू में गड़बड़ हो, आप होल्डिंग मत करें और कोई फास्ट ब्रीदिंग ना करें, ये सब अवॉइड करें, सब स्लो ब्रीदिंग करें। आज हम 3 स्लो ब्रीदिंग करेंगे, फिर शवासन वहीं से जाएंगे। तो इसमें क्या है, विष्णु मुद्रा लगाते हैं, 2 उंगली मिडिल इंडेक्स बैंड करते हैं, या आप इस तरह भी कर सकते हैं, राइट नोस्ट्रिल क्लोज, नाउ आईज क्लोज। अब आंखें बंद, इनहेल लेफ्ट 1 2 3, एक्सेल राइट 1 2 3 4 5, inhale right 1 2 3, exhale left 1 2 3 4 5, inhale left 1 2 3, exhale right 1 2 3 4 5, inhale right 1 2 3, एकदम स्लोली, exhale left 1 2 3 4 5, inhale left 1 2 3, exhale right 1 2 3 4 5, inhale right 1 2 3, exhale left 1 2 3 4 5, inhale left 1 2 3, exhale right 1 2 3 4 5, inhale right 1 2 3, exhale left 1 2 3 4 5, inhale left 1 2 3, exhale right 1 2 3 4 5, inhale right 1 2 3, exhale complete 1 2 3 4 5। तो अभी एक इंट्रोडक्टरी करते हैं हम लोग, भ्रामरी, इसको लंबा करने का है। इस तरह दोनों बंद करेंगे कान को, हर बार ब्रीथ लेंगे, और जब ब्रीथ छोड़ेंगे तो ब्रीथ कैसे लें, आखिर हम ब्रीथ को कैसे लंबा करें। तो ब्रीथ लंबा करना हो तो आप क्या करें, आप ब्रीथिंग को देखना शुरू कीजिए, डे बाय डे आपके ब्रीथ की लेंथ बढ़ जाएगी। हम ब्रीथ को नहीं नजरअंदाज कर रहे हैं, इसलिए ब्रीथ छोटा हो रहा है, हमारा लंग्स छोटा हो रहा है, डे बाय डे स्पाज्म हो रहा है, हार्ट छोटा हो रहा है। आप देखिए ना, भगवान कहते हैं अष्टावक्र, इदम दृष्टा भवति, तुम दृष्टा बन जाओ, फिर तुम परम हो, तुम मुक्त हो, तुम आनंदमय हो। तो क्या करना है, बेली से चेस्ट की ओर ब्रीथ भरना है। देखें, जैसे मैं कान बंद किया, ब्रीथ भर रहा हूं, अब छोड़ेंगे, फिर भरेंगे नीचे से बहुत स्लोली, ऐसा 5 बार करके सभी इस तरह से लेटेंगे, पहले इस तरह से लेट जाएंगे, 5 बार करके सभी लेट जाए, 5 टाइम,
होते जाएगा, लेटते जाएगा, बस हो गया वो। लेट जाइए धवल जी। हाँ, नी को बैंड करें, 1 मिनट थोड़ी सी ब्रीदिंग करेंगे, ठीक है। तो आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूं, यहां से क्या डायफ्रामिक बसिर प्राणायाम करेंगे। मैं बोलूंगा इनहेल, आप पेट को धीरे धीरे बिना ताकत लगाए भरेंगे। एक्सेल में पेट को खाली करके फिल करेंगे, गड्ढा बन रहा है। नाउ रेडी, इनहेल, तभी लेट जाएंगे। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। ओके, हम लोग इस फिनिश करते हैं, बस लेट जाए। एक लेटे रहे, एक एक 30 सेकेंड और। ओ सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम। सभी लेफ्ट करवट लेकर लेफ्ट टर्न करके बैठ जाएंगे। तभी एक ओंकार 3 शांति करें। फिर ओम शांति शांति शांति। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया, मुझे सबसे परिचय करवाया। जैमिन जी, फिनिल जी, सबको धन्यवाद। नमस्ते। प्लेजर नीरज जी। थैंक यू, आप आगे कीजिए। हाँ जी, बहुत सारे पार्टिसिपेंट ने पर्सनली मैसेज भी किया था कि लाइक शेयर द प्रोफाइल ऑफ सर, सो श्योर वी विल शेयर द प्रोफाइल ऑफ सर एंड also the channel if sir is having, so that you can further also take the benefit of them. Now you are moving fast towards, I'll request Ruchit to propose a vote of thanks to sir. Yes, sir. Good morning to the guest, Mr. Neeraj Vashisht and Ms. Jinal Shah, Chairman of Ahmedabad branch, CA Fenil Shah sir, and all the dignitaries and participants present over here. First of all, I would like to thank Fenil sir for giving me a wonderful opportunity to speak on this wonderful session, and it is a matter of honor for me. On behalf of the entire institute, I would like to thank our guest speaker, I think so, there is some audio issue. Ruchit?
I request Jeremy to just propose a vote of thanks and to have some words, as I think so Ruchit is not audible. Hello. Yeah. No worries. Yeah, hi Fenil and hi everyone. So I take a pleasure, thanking Niraj Guruji. I have been training with him for the last 4 months. I have never thought of doing yoga in my life. Though my father himself is a yoga teacher and a trainer since his young age. But it's always like, yoga is something which I don't want to do right now. This is something which I will continue as a discipline in my lifetime for the future. And it has benefited me a lot. Thanks to Guruji for the same. Secondly, friends, I'm receiving so many messages from all of you, appreciating it, and also bringing some of the things which we should do really differently, or where we need to improvise. So all the points and all your suggestions are always taken care of, and the team leaders are working really very hard to have a personal connect with all of you. And so far, if I see the data, I'm sure there are more than 420 to 425 on an average, I'm saying, are basis. And this is something amazing, right? This is something really, really amazing and commendable. I wish after 21 days you will continue some or the other form of activity. This is just a starting, and I believe that the entire week should be balanced so far as the workout is concerned. Not only the running or walking, but you can also include like yoga, some stretching exercise, some strength exercise, some core exercise, some floor exercise. So there should be a balance of doing the exercise, and that's how we will cultivate the discipline of doing workout on a daily basis. Fenil, over to you. That's what I just wanted to share with everyone. Thank you. Thank you, Jamin. Thank you. Actually, we all wanted to share many things, but as such, Jinal Shah, the very learned speaker and from nutrition and Rujuta Devakar's team, has joined us, and she is having a very less time. So we are cut shorting all the formalities, but just I was super excited to share just one small thing. Very happy, very joyful, and super excited. Why was super excited? Because as Zaimin told that 472 says zyada participants active hai. Rest all are not doing regularly, but this people are doing on a very regular basis. And you will be surprised that, friends, the data till yesterday, that is till yesterday, more than, if I be very precise on numbers, more than 20,275 kilometers have been run or walked by each the participants taken together. So full credit goes to all of the participants, full credit goes to the race directors, and the utmost highest credit goes to all the team leaders who are working out. We all are just focusing on our challenge. They are working for their own challenge and also making you all run. And friends, you very well know that this challenge is based on 3 pillars: clarity, consistency, and commitment. And I told you in the last session that in 21 days habit, the first 7 days are self-motivating. It's new, so we do. Our body makes to do. The second 7 days, that is a week to end today, is challenge. And I told you last week that if you continue for this 7 days, this is going to become your habit. Body may refuse you, but at that point of time, your mind power is going to help you. And yes, congratulations to all of you that we did it for this 14 days. Today, the 14th day is to end. And now nothing inspirational, because the last 7 days are going to be self-motivating. You are now going to do, now the reverse clock is going to start. 7 days lab, 6 days lab. And yes, the day will come when the challenge 1 day will left and the journey towards a lifetime will start. As Zaimin told that we will continue this, there are few plans in mind. We will announce on the last day for having a permanent group, not taking time right now, but we'll say that in this last week, you be inspiration for someone. Just walk someone for 7 days, just for 7 days with you. If they are not ready to walk, make them walk just for 1 kilometer, but try to be inspiration for someone for this 7 days and try to be worthful in everyone's life.